जी, good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.D. Mahadik sir, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर लीशा ठाकरे मैम ने अपना फर्स्ट केस हमारी आईएचएफ फैमिली में प्रेजेंट किया है। तो आप सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो आशा करते हैं मैम का ये पहला वीसी शानदार होगा, यादगार होगा। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग मैम। Good evening, sir. Thank you so much, sir, for such a warm welcome. And thank you to all the participants कि आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। ये मेरा फर्स्ट केस था, तो मैंने एक पीपीटी बनाई है एंड आई शेयर द पीपीटी विथ यू। First of all, I want to give my sincere gratitude to Dr. Hanuman sir. उनकी वजह से ही हम सब आज यहाँ पे है। My sincere gratitude to Sehgal sir, Rao sir, Mohanty sir, Gupta sir, Mahesh Chandra sir, एचएचएफ के सारे मेंटर्स, आईएचएफ के सारे मेंटर्स और परवीन सर, आपके लिए स्पेशल थैंक यू कि आपने मुझे चांस दिया, अपॉर्चुनिटी दी टू प्रेजेंट माय फर्स्ट केस और आपने बहुत अच्छे से गाइड भी किया है मुझे। तो आई हैव शेयर्ड 2 केसेस, तो मैं अभी केस नंबर 1 नरेट करती हूँ। दिस इज अ केस ऑफ अ 21-year-old गर्ल सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन सिंस 2 years। द केस वॉज टेकन ऑन फोन कॉल। मैं रहती हूँ वलसाड़ में और ये पेशेंट रहती थी भावनगर में। So this patient approached me when she saw relief in my aunt's complaint. मेरी मामी को नी पेन की कंप्लेंट थी, तो जब मामी को नी पेन की कंप्लेंट में रिलीफ दिखा तभी ये पेशेंट ने देखा और फिर उन्होंने मेरे मामी से मेरा नंबर लिया एंड शी कॉल्ड मी। थ्रू आउट द फोन जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन था, जो मैंने महसूस किया कि द पेशेंट वॉज वेरी पोलाइट एंड शी वॉज गिविंग मी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। बहुत अच्छे से पोलाइटली बात कर रही थी वो मेरे साथ। So I asked her, tell me, how can I help you? Patient, ma'am, past 2 years I have severe problem of constipation. So I've gone to many doctors. Few say it is fissure, few say it's initial stage of piles. But since 2 years I'm going to doctors, did scan, nothing is there. But constipation is very much and stool is very hard to pass. So there is a rupture at rectum. So normally because of food it does rupture, but when I take green leafy vegetables there is no bleeding. But otherwise, bleeding is also present, along with burning, and whole day I feel uneasy. This is happening since 2 years. I take medicine, it gets little better, then again same complaints start. So I'm not able to understand whether I have problem of constipation or near rectum. Also, little skin comes out when I pass stool. तो 2 साल से ये सफर कर रही थी, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ थी इसको। ये बहुत डॉक्टर के पास जाके आई और इसको यही समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो रहा है। कोई डॉक्टर्स बोलते थे कि पाइल्स है, कोई बोलते थे फिशर है, तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या है। डॉक्टर, so what did you do till 2 years? Patient, I took little homeopathy. I used to stay at hostel, so I used to go to only specific washroom. And I used to give lot of pressure to pass stool. So because of this it happened or what? I am not able to understand, ma'am. I took homeopathy, Ayurveda. Now I am taking allopathic medicines since 20 days. Doctor, now why do you want to take homeopathic treatment? Patient, my friend told me if you take homeopathy, it will heal you from within. My friend had sinus problem. Now her problem is better. Also, now I am preparing for Navy, Defense. So, if I have piles, I will become unfit. So, I have lot of fear that such should not happen in my journey of preparation. So, I run, jog, but I feel if I take homeopathy, it's good. It will go away from the roots. तो मैंने पूछा, how do you manage your work with this? तो मैंने एक्चुअली डायरेक्ट स्टार्ट किया कि टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। मैंने उसको ये भी पूछा नहीं कि ओके हाउ ओल्ड आर यू, आप क्या कर रहे हो। सो देन शी टोल्ड मी कि आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम, आई डोंट डू एनी अदर वर्क, आई जस्ट डू योगा, एक्सरसाइज एंड स्टडी।
Doctor, what concern do you have? I'm preparing for competitive exam, especially for defense exam. So I have concern that because of constipation or piles problem, I should not fail. Also, I become uneasy whole day. I have shown to many doctors. Some say it is piles, some fissure. So I fear, what if I have to operate? Also, I see on YouTube, they show it could be cancer of stomach. So I have fear that I might get cancer. फिर लास्ट में मैंने उसको उसका नेचर पूछा. शी सेड आई गेट फ्रस्ट्रेटेड इजीली. I think more about future and I stay more lonely. I don't easily meet with people. I just study, prepare for competitive exam. Finally, I asked her, you are very ambitious, right? She said, yes, ma'am. So please share your understanding. जी बताइए प्लीज. कोई मेंबर्स प्लीज. हाँ, अपना वैसे बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन किया है सभी ने. कोई एक दो डॉक्टर्स आप अपना एनालिसिस प्लीज दीजिए. गुड इवनिंग मैम. यस मैम, गुड इवनिंग. पहले आवाज आ रहा है? यस मैम, यस. ये आपको बहुत रेफरेंस दे रही है और आपकी मामी को उसके नहीं कंप्लेंट्स में बेटर हुआ तो इसने फोन लेके आपको फोन किया है. और इसको क्या है समझ में नहीं आ रहा है, ये पाइल्स है या और कुछ है. तो इसको लाइट चाहिए ऐसे मुझे लगता है. और यूट्यूब पर उसने देखा है कि इससे वो कैंसर की बीमारी भी हो सकती है, तो इससे कैंसर का भी डर है. और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है, बीटेक हुआ है, तो इसका एम्बिशन भी बड़ा है, बहुत बड़ा है. और एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव और फियर फेल्योर ऑफ एग्जामिनेशन. इस कंप्लेंट की वजह से नेवी में जो मेडिकल एग्जामिनेशन होती है उस टाइम उसको अगर उनको पता चल गया कि इसको पाइल्स है तो वो फेल कर देते. तो इसको वो डर है कि वो इस पाइल्स की कंप्लेंट की वजह से उसका वो एम्बिशन ना मिल जाए उसको. ये डर उसे बहुत है. और लाइट तो उसको चाहिए ही. और वो पोलाइट इतनी अच्छे से बात कर रही है, ऐसे नम्र स्वभाव की ऐसी लगती है. और इस सबसे हमने नाइट्रोमोर सोचा था उसको देने का. थैंक यू मैम. यस मैम, यस मैम. बहुत अच्छा एनालिसिस मैम. यस मैम. कोई और शेयर करना चाहेगा? फिर मैं अपना एनालिसिस शेयर करती हूँ. फिर सेकेंड केस भी बताती हूँ. जी बताइए प्लीज. और गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग सर. हेलो. गुड इवनिंग हाँ सर, मैम, बोलिए. मुझे ना पहले हाँ मैम, मुझे ना पहले इसको देख के मतलब एंजाइटी डार्क था जो इसको क्या हुआ, इसको पता नहीं चल रहा है. इतना सारा डॉक्टर दिखा दिया फिर भी आराम नहीं आ रहा है. तो इसको लेकर इसका बहुत डर रहता है और ये यूट्यूब देख देख के इसका हालत बहुत खराब हो गया. तो ये सब सोच के पहले मुझे स्ट्रेमोनियम लगा था, लेकिन अगर इसका एम्बिशन इसके साथ जोड़ा जाए तो ये नेट्राम्यूर की तरफ जाता है, नेट्राम्यूर फास्फोरस ये सब. लेकिन आपने जो बोला ना ये ज्यादा फ्रेंड से मतलब मिलते जुलते नहीं है. ये अपने एम्बिशन को लेके पढ़ाई में लेके मतलब थोड़ा रिजर्व टाइप का लगा, तो इसलिए नेट्राम्यूर सोचा, नहीं तो फास्फोरस पे आता. जी सर, जी सर. थैंक यू मैम. यस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. सर मैं अपना एनालिसिस शेयर करूं या कोई और अपना देना चाहेगा इनपुट्स? ओके चलो, मैं अपना एनालिसिस शेयर करती हूँ फर्स्ट केस का.
तो बहुत अच्छे से आपने सबने बोला है। मैंने भी जब केस लिया तो मैंने सबसे पहले ये 3 रूब्रिक्स लिए, 3 रूब्रिक्स लिए। First entry in the case was where she was not able to figure out what is she suffering from and why is she suffering. Because some doctors told her it is piles, some fissure. Also she thought whether it is because of her motion habits at hostel, क्योंकि वो एक ही स्पेसिफिक वॉशरूम यूज करती थी और फिर वो बात बहुत प्रेशर देती थी, फिर वो प्रेशर देने की वजह से उसको हो रहा है क्या ये सब, ये भी उसको लगता था। So here the patient is very anxious. Why? Because she is in dark, completely dark में है patient, पूरे अंधेरे में है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है और फोकस क्या है पेशेंट का, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो बहुत अच्छे से सबने लिया है ये। दिस इज एंजाइटी डार्क इन। Second rubric, which was very important and her main concern, she was appearing for competitive exams and she was very, very ambitious. So I took a broader rubric, ambition increased. और जैसे आपने सबने वो फील किया कि बहुत रिस्पेक्ट दे रही थी वो मुझे हर जगह पे, मैम, मैम दिस, मैम दैट, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। अभी ये केस का कोर क्या है? Sorry, when you club about 3 rubrics, we get only 2 medicine, Pulse and Natramur. The remedy I gave is Natramur. 9th Feb 2021 को मैंने दिया उसको Natramur 33 doses. By 15th Feb itself, she felt a lot of relief. All her complaints are better, but the skin tag remained and it is present still today, but doesn't affect the patient in any way. जो मैंने सेकेंड केस शेयर किया है आप लोगों के साथ, वो ऑडियो में भी पेशेंट ने बोला है कि एक स्किन टैग है बट उसको कुछ दिक्कत नहीं आता है उसकी वजह से। कोर ऑफ द केस, द पेशेंट इज कंप्लीटली वरीड अबाउट हर फ्यूचर। शी कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट हर फ्यूचर, हर एंटायर फोकस इज ऑन हर फ्यूचर ओनली। सो एब्सॉर्ब, वरीड इन थॉट, फ्यूचर अबाउट, जो कंप्लीट रेपर्टरी में है, कंप्लीट डायनामिक्स में है। एब्सॉर्ब, बिकम ऑफ हिम एज टू व्हाट, ये कोर है इस केस के रूब्रिक्स। और इसकी वजह से जो इसने गोल बनाया है अपने लिए, शी हैज क्लियरली मेड अ गोल फॉर हर एंड हैज ऑलरेडी मेड प्लान्स टू अचीव देम। प्रोग्रामिंग भी कर रही है ना ये, कि इसको डिपार्टमेंट नेवी में जाना है, इसको रेलवेज में जाना है। सो प्रोग्रामिंग एवरीथिंग। अदर रूब्रिक्स विच आर एप्लीकेबल इन द केस, इम्प्रेशनेबल, जैसे बताया डॉक्टर्स ने। She got an impression after seeing relief in my aunt's disease that she too would get better. Also, she told about her friend who had sinus problem was better by homeopathy. यहाँ पे भी वो impressionable rubric लगता है। फिर fear failure of है, fear rejection of, fear cancer of, fear thunderstorm of, कि अभी ये जो आ गया है बीमारी, ये उसके लिए thunderstorm जैसे ही, मतलब पूरा thunderstorm की तरह ही है वो, इसकी वजह से वो यहाँ वहाँ भाग रही है। Fear driving him place to place. और फुल एंजाइटी थ्रू एंड थ्रू केस में है। एंजाइटी हेल्थ अबाउट, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लाइट डिजायर फॉर है, शी आस्क्ड मी वेदर शी विल गेट क्योर्ड। और एक्स्ट्रावेगेंस, क्योंकि बहुत बार उसने बहुत ये वर्ड्स यूज किया है। आप अगर वापस ऑडियो सुनेंगे तो बहुत बार, जैसे मैं भी बहुत बोल रही हूँ, तो पेशेंट ने भी बहुत ऐसे यूज किया है। सो आई टुक दिस रूब्रिक, एक्स्ट्रावेगेंस और रिजर्व्ड। अभी भी सर ने बताया कि वो अकेला ही रहना पसंद करती थी, अपने गोल पे पूरा उसका फोकस था। सो ये केस नंबर 1 था। सर मैं केस नंबर 2 पे बढ़ू आगे सर? सॉरी, आई शेयर द फॉलो अप ऑल्सो। जैसे आप देख रहे हो 11th फेब को 9th फेब को मेडिसिन लिया था, उसके बाद 9th फेब को नहीं लिया था, उसके बाद में लिया था। एग्जैक्ट डेट अभी मैं बताती हूँ। तो 11th फेब को उसके कंप्लेंट्स वैसे ही थे, उसको था, बट उसको बर्निंग बिल्कुल भी नहीं था, बर्निंग सेंसेशन बिल्कुल भी नहीं था। फिर 15th फेब को आप देख सकते हैं, टुडे कांट कंप्लेन, ऑल फाइन मैम। 19th फेब ऑल्सो, व्हाइल पासिंग स्टूल आई हैव नो पेन, नो बर्निंग, नो ब्लीडिंग। फिर आई टोल्ड हर की जेल नहीं अप्लाई करना। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 20th फेब को she is telling ki there is no mass protruding even today while I have passed little hard stool, but there is no pain, no mass protruding, no burning, no bleeding. Quite improvement is there day to day. Size of mass is little shrink inside, I guess. और 11th March को वो बोलते हैं कि after a patient's observation, I have understand I have no much problem related to constipation as well as fissure, but only that mass protruding is still there.
और आप ये उन्होंने मुझे एक लास्ट में दिया था एक रिव्यू, तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि शी हैड टू रन मेनी हॉस्पिटल्स, चेंज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, और यहाँ पे भी उन्होंने कितना क्लियरली मेंशन किया है, ड्यूरिंग दोज टाइम फोकस लेवल टुवर्ड्स माय गोल डे टू डे फ्लक्चुएटेड अ लॉट। तो जैसे अभी हमने देखा कि पूरा ये केस का कोर ही वही था कि पेशेंट के लिए गोल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सर केस नंबर 2 स्टार्ट करूं सर? यस मैम। हाँ ओके सर। सो अगर अभी किसी का कोई क्वेरी है, एक सेकंड में, अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोल सकते हैं, नहीं तो हम फिर सेकंड केस की तरफ चलते हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग। यस मैम, यस मैम, यस। आपने यहाँ पर ग्रोपिंग एज इफ इन डार्क क्यों नहीं लिया था, एंजाइटी डार्किंग क्यों लिया है? मतलब वो बोल रहे थे कहाँ है मेरा प्रॉब्लम, कहाँ हो रहा है, वो खुद ही बोल रहे थे ना, यहाँ पे हो रहा है, वहां पे क्या, मतलब वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। तो आपने ग्रोपिंग एज इफ इन डार्क का और ये दोनों डिफरेंस बता देंगे क्या? यस 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 मैम, बराबर है, यहाँ पे वो डाउट आता ही है। ग्रोपिंग में जो फोकस होता है ना पेशेंट का, वो सारे ऑप्शंस पे ज्यादा रहता है। वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो पेशेंट का फोकस क्या था कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है फिर क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है फिर क्या है। जैसे ग्रोपिंग अगर रहता ना तो पेशेंट ये वर्ड्स थोड़ा कम यूज करता, और जैसे वो बोला कि मैम ये पाइल्स की वजह से होगा क्या, ये फीचर की वजह से होगा क्या, या मेरा जो मोशन का हैबिट्स है उसकी वजह से होगा क्या, पेशेंट का थ्रू एंड थ्रू है ना उसमें रहेगा और वो उसी में टटोलता रहेगा, उसी में ग्रोप करता रहेगा। समझा मैम आपको? ओके मैम, अंडरस्टूड, थैंक यू। अंडरस्टूड, यस थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई क्वेरीज है? नमस्ते, एक बार और बता दीजिए मैडम, बहुत अच्छा है। हाँ सर, ग्रुपिंग में है ना सर, जो पेशेंट का फोकस होता है, जो जब वो आपसे बात करेगा तो वो जो ऑप्शंस जो होते हैं ना उस पे उनका फोकस रहेगा और वो उन्हीं को बार बार बोलेगा, वो उन्हीं वर्ड्स में खेलता रहेगा। जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको दिया अभी ये केस में कि मुझे पाइल्स की वजह से है क्या प्रॉब्लम, या फिशेस की वजह से है, या मेरे मोशन हैबिट की वजह से है। या दूसरा एग्जांपल कि पेशेंट को हेडेक है तो वो बोलेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये वर्ड भी वो यूज करता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे हेडेक क्यों है, ये किसकी वजह से है, ये स्तन में जाती हूँ मैं उसकी वजह से है क्या, या मैंने फास्टिंग रखा है अभी उसकी वजह से है, या हाँ मुझे मेरे मैडम हस्बैंड समझ की गए, बहुत ज्यादा फिक्र रहती है। उसकी हाँ अपनी हाँ, अपनी कमी तो को वो दर्शाता है। जब अपनी कमी को बताता है कि नहीं समझ में आ रहा है, मतलब चीजों को टटोल अपनी नहीं कमी रहा को है। नहीं बताता है सर, वो जो ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस जो होते हैं ना जिनकी वजह से वो सफर हो रहा है, उसको लग रहा है, वो ऑप्शंस पे वो उनको फोकस जोर नहीं करेगा। डालता है, नहीं करेगा हाँ, वो ऐसे नहीं बोलेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो ऑप्शंस जो है जिसकी वजह मैम से वो वो ऐसे सफर कर रहा है। मैम वो ऐसे बोलेगा मुझे लगता है यहाँ से हुआ है, मुझे लगता है वहां से हुआ है, मतलब समझ हाँ, में नहीं वो आ जो रहा है बाकी ये ऑप्शंस बात। है, इससे हाँ, इससे ज्यादा यस, ये बोलेगा कि मुझे लगता है, मुझे थैंक यू लगता है। हाँ, मैडम, बहुत बहुत वो बाकी के बहुत बहुत ऑप्शंस थैंक में यू। ग्रुपिंग करेगा, टोटोलेगा, जो ग्रुपिंग का मीनिंग है, ग्रुपिंग इन डार्क, वो भी डार्क ही है उसके लिए, लेकिन वो उस डार्क में टटोलता रहेगा खुद को। जी सर। बिस्कुट हाँ हाँ जी सर। मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। हाँ सर, थैंक यू सर। मैं केस नंबर स्टार्ट करूं सर? जी मैम। पार्टिसिपेंट्स, ओके सर। जी जी जी। तो अभी ये सेम पेशेंट है, ये शी कॉल्स मी नाउ ऑन 20th of Jan 2024। अभी आपने ऑडियो में सुना होगा, अभी ये 3 साल के बाद इसने मुझे अभी कॉल किया है, एंड उसका जो गोल था, उसका जो एम्बिशन था कि उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, वो उसको मिल गया है अभी, और वो रेलवे डिपार्टमेंट में अभी वो काम कर रही है। ओके, तो अभी उसने मुझे वापस कॉल किया है। अभी इस तरह से है पेशेंट, वही आपसे ट्रीटमेंट लेना था मैम। आज का जो ठंडी है ना, तो उसमें फ्रिक्वेंटली कोल्ड, कफ, थ्रोट इन्फेक्शन,
हर साल हर ठंडी में होता है, थोड़ा कोल्ड सेंसिटिव हूँ। तो इस बार न्यू प्लेस में पोस्टिंग हुआ था, तो थोड़ा सा यहाँ की एनवायरनमेंट की वजह से ठीक हुआ। दिसंबर में आया था, नवंबर एंडिंग में ठीक हुआ, फिर वापस बीच में ठीक हुआ, फिर वापस अभी स्टार्ट हुआ मैम। फिर मैं उसके पोस्टिंग के बारे में उसको पूछती हूँ, तो वो अभी हैदराबाद में थी पहले, फिर उसके बाद वो विजयपाड़ा करके है, उस जगह पे अभी हुई है उसकी पोस्टिंग। तो अभी ये कोल्ड की तकलीफ कब से है पेशेंट? अभी वापस अभी स्टार्ट हुआ, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि अभी उसने एंटीबायोटिक लिया है। कोल्ड कफ और थ्रोट इन्फेक्शन मतलब ये हर ठंडी में आता ही रहता मैडम, 1-2 बार। थोड़ी सी कोल्ड सेंसिटिव तो हूँ। फिर वापस क्या कि अभी घर जाना है, फिर वापस हैदराबाद जाना है, तो थोड़ा भी एनवायरनमेंट चेंज होता है तो जल्दी मैं उसमें वो हो जाती हूँ। मम्मी ने बोला कि होम्योपैथी में ट्रस्ट है, तो मैम से दिखा, क्योंकि मैम ऑलमोस्ट स्टडी की हुई है तुझे, अभी से ट्रीटमेंट लेंगे तो नेक्स्ट उसमें जो आएगा विंटर तो ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत एंटीबायोटिक ले रही हूँ मैम, तो इतना एंटीबायोटिक भी ठीक नहीं है। ये जो पेशेंट ने जैसे बोला है, मैं ऑलमोस्ट वैसे ही मैंने टाइप किया है सारा जो पेशेंट का कन्वर्सेशन। डॉक्टर, पर अभी इतने दिन से लिया नहीं, फिर अभी ऑल ऑफ अ सडन क्यों होम्योपैथी याद आ गया? जाहिर है मुझे तो सबसे पहले ये क्लिक हुआ। पेशेंट, मैम ये बार बार आ रहा था ना, तो मम्मी बोल रही थी कि एक बार कंसल्ट हो मैम से। डॉक्टर, मतलब मम्मी को लग रहा था इसलिए किया क्या? पेशेंट, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब इसके बारे में मैं बोली कि होम्योपैथी में मतलब इतना गया नहीं दिमाग मुझे। डॉक्टर, हाँ आपको नहीं लगा ना खुद से होम्योपैथी ले लूं ऐसा? पेशेंट, नहीं, मुझे लगा कोल्ड एंड कफ है ना, तो 2-3 दिन का खेल है, इसमें होम्योपैथी क्या? तो फिर मम्मी को जब मैं बोली कि बार बार क्यों आ रहा, कोरोना का टाइम है, थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा, तो मुझे याद आया, मतलब मम्मी ने बोला तब मुझे लगा कि हाँ ये सही है। डॉक्टर, तो अभी इसको लेके क्या टेंशन आता है? पेशेंट, टेंशन तो कुछ नहीं मैम, मतलब बार बार एंटीबायोटिक ले रही हूँ, वो जो थ्रोट इन्फेक्शन होता ना, तो बस खा नहीं पाती तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन इसी में चल जाता है। जैसे ठीक होती हूँ तो ठीक लगता है, जब आता है तो एकदम से लाइक पूरा वीक हो जाती हूँ। तो अभी मैं वापस घर जाने वाली हूँ अगले महीना, और बीच में हैदराबाद, तो मैं बोली वापस होगा, इससे अच्छा मैं होम्योपैथी स्टार्ट करूँ तो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर, आपका जो कंप्लेंट्स है ये आपके डेली रूटीन में कैसे अफेक्ट कर रहे हैं? अफेक्ट मतलब बहुत लाइक थोड़ा काम करने में लाइक थोड़ा अनईजी लगने लगना, फिर थोड़ी पढ़ाई भी करती हूँ तो थोड़ा सा अनईजीनेस। फिर मैं सोची अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो, अभी किस चीज की पढ़ाई? अभी और मैम रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होता है ना, तो प्रिपेयर रही तो ज्यादा अच्छा है। इतना स्ट्रेस तो नहीं ले रही हूँ, थोड़ा 1-2 घंटा पढ़ती हूँ। काम में थोड़ा सा लाइक मन नहीं लगता, ज्यादा सर्दी हो जाता तो थोड़ी सी वीक हो जाती हूँ, तो वही, बाकी कुछ नहीं है ऐसे। ज्यादा एंटीबायोटिक लेना भी सही नहीं है, तो मैं स्पॉन्टेनियसली मेरा क्वेश्चन आया, तो क्या होगा ज्यादा एंटीबायोटिक लेंगे तो? पेशेंट, ज्यादा मतलब बोल रहे डॉक्टर कि ज्यादा सही नहीं है, ये अभी तो ठीक रहता है, फिर बाद में लीवर किडनी में असर पड़ता है, ऐसे सब बोल रहे हैं। डॉक्टर, आपको ऐसा लगता है ना? हाँ, मतलब वो बोलने के बाद मुझे लगा कि ज्यादा ज्यादा ठीक नहीं है एंटीबायोटिक लेना, क्योंकि हर ठंडी में मैं ऐसा ही करती हूँ। वो हर ठंडी में एंटीबायोटिक ले रही थी। ओके डॉक्टर, बाकी और कुछ स्ट्रेस है? पेशेंट, अभी कुछ स्ट्रेस नहीं है, पेशेंट। डॉक्टर इंक्वायर्स अबाउट प्रीवियस कंप्लेंट्स, तो जिसमें पेशेंट ने बताया कि उसको बहुत अच्छा रिलीफ मिला था। डॉक्टर, तो अभी ये सर्दी खांसी क्यों हो रही है बार बार आपको? पेशेंट, ये सर्दी मतलब थोड़ा सा ठंडा, जैसे मॉर्निंग में उठ के योगा करती हूँ मैम, तो वहां मॉर्निंग में थोड़ा फ्रॉस्टिंग मॉर्निंग ऐसा है, वहां मैं गर्म पानी भी पी रही थी, पता नहीं बॉडी लिया नहीं उस चीज को, फिर फूड पे कंट्रोल नहीं रहता, तो धीरे धीरे और ज्यादा होने लगता है। फूड पे कंट्रोल नहीं मतलब? मैं तुरंत उसको पूछा। पेशेंट, मतलब परसों सर्दी हुआ था, तो मुझे पता था कि दूध नहीं पीना, तो भी मैंने पी लिया, दही भी ले लिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने स्टार्टिंग में इसको पकड़ाया नहीं तो और ज्यादा हो गया। डॉक्टर, और क्या लगता है? पेशेंट, मतलब लास्ट टाइम हर साल होता है ठंडी में, लेकिन इस बार क्या है 2-3 बार होने लगा। डॉक्टर, तो क्या डर लग रहा है, क्या सोच रहे हो? पेशेंट,
कुछ सोच तो नहीं रही हूँ मैम, और यहाँ पे वो हंसती भी है। क्या है, मैं अभी नेक्स्ट वीक ट्रिप सोच रही हूँ, तो वापस एनवायरनमेंट चेंज होता है तो मैं थोड़ा वीक ना हो जाऊं, वापस फिर स्नीजिंग आने लगेगा, और स्नीजिंग भी बहुत ज्यादा आने लगता है। भाई को भी यही तकलीफ है, मैं थोड़ा ज्यादा सफर कर रही हूँ अभी। पता नहीं एनवायरनमेंट नया है क्या इसलिए, या बॉडी अभी यूज टू नहीं नहीं है, क्या है समझ नहीं आ रहा। फ्रिज का पानी भी नहीं पीती हूँ, मटके का ही पीती हूँ। डॉक्टर, पर इस बार आपने खुद से नहीं सोचा ना कि होम्योपैथी ले लूं? पेशेंट, हाँ हाँ, तब मुझे याद आया कि मेरी एक फ्रेंड है, उनके भैया को भी बचपन से ऐसी सर्दी की तकलीफ है। तब उसने बताया था कि होम्योपैथी ली थी, तब से भाई ठीक है। तो मम्मी ने बताया, तब स्ट्राइक हुआ। डॉक्टर, पर डर कुछ नहीं लग रहा? वापस, डर तो कुछ नहीं है मैम, और वापस एक स्लाइट लाफ जो है उस पेशेंट के। डॉक्टर, एनी चेंजेस इन बिहेवियर ड्यूरिंग योर कंप्लेंट्स? बिहेवियर में कुछ चेंज नहीं रहता, थोड़ा सा स्लिपी स्लिपी लगता है। टैबलेट ले रही हूँ इसलिए, या किसकी वजह से पता नहीं। कोई गुस्सा चिड़चिड़? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले सर्दी स्टार्ट होता है, रनिंग नोज, फिर ये रनिंग नोज तुरंत अफेक्ट हो जाता है थ्रोट में, फिर मैं कंफर्टेबल रह नहीं पाती हूँ, वो थोड़ा सा। बस ये इतना केस है अभी। ये यहाँ पे आपको क्या रेमेडी लगती है? प्लीज अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर कीजिए। जी बताइए। हाँ बोलिए हेलो मैम। मैम। हाँ, यस इस यस। अभी वो 3 साल बाद इसने फिर से आपको कांटेक्ट किया है, तो ये रेफरेंस में भी है अभी भी, अब मैम करके आपको बोल रही है, और इसका एम्बिशन अभी को पूरा हो गया, लेकिन वो अभी भी उसको वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं डिपार्टमेंट के, तो एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव है। और इसको वो मेडिसिन एंटीबायोटिक बार बार लेना पसंद नहीं है, क्योंकि लोग वो डॉक्टर बोलते हैं कि वो ज्यादा मेडिसिन एंटीबायोटिक लोगी तो वो नुकसान करेगी, तो इसे पॉइजनिंग का डर है। तो और दूसरे बोलते हैं इसलिए उसको ज्यादा लगता है, और इसको आप आपसे उसको फाइल्स के कंप्लेंट्स में रिलीफ मिली थी, लेकिन इसको अभी अंदाजा नहीं है कि उसको पता जल्दी वो डलनेस की वजह से उसको आपको कांटेक्ट नहीं किया उसने जल्दी से, लेकिन माँ कहती है इसीलिए उसने आपको कांटेक्ट किया, तो हेड बिलोंग्स टू अनदर ऐसा लगता है। और उसका एम्ब्रेसमेंट वो फीलिंग वो हंसी है, हमें हमें तो नहीं दिखाई दी, लेकिन मुझे लगता है वो एम्ब्रेसमेंट होगा उसका, वो जो स्माइल है, तो इस टाइम भी आपने उसको नाइट्रमोर ही दिया होगा ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू मैम। ओके मैम, ये एम्बेरसमेंट था या और भी कुछ हो सकता है मैम? ओके, क्योंकि आप मैंने ये बताइए। केस कॉल पे ही लिया था, वीडियो कॉलिंग नहीं था, सिर्फ कॉल, नॉर्मल कॉल था अपना। ओके मैम। हम्म। या हायोसाइमस लग रही है इस बार। अफेक्टेशन में भी है, ग्रोपिंग में भी है, रिवरेंस में है, और फियर ओके मतलब डिल्यूजन, इंजुरी इंजर्ड बाय सराउंडिंग है, तो ये हायोसाइमस के ओके साथ जाऊंगी। ओके ओके मैम। हेलो मैम। मुझे इसमें थोड़ा यस। बेलाडोना का फील आया मैम। बेलाडोना का फील हुआ है, तो उसने बड़े बड़े भोलेपन से उसने कहा कि मुझे दिमाग में ही नहीं आया, तो मुझे तो ये नेब लग रहा था मामला। ये तो काफी नेब अच्छा वाली फीलिंग है। उसके साथ में मम्मी ने कहा तो ले लिया, तो एक क्रेडुलस टाइप का फील आया। बाकी बहुत लाइट वाली बंदी लग रही है, और फियर पॉइजन बीइंग, तो ये लेकर के थोड़ा बेलाडोना का फील आया। ओके सर, ओके सर। तो एक्यूट वाली कंडीशन उसकी क्या थी वो मैंने थोड़ा कंसीडर करी है। बाकी उसका एम्बिशन वगैरह वो तो था ही, वो तो, लेकिन मुझे लगा कि क्रॉनिक में शायद उसे कंसीडर करना चाहिए, अभी नहीं। ओके सर। प्लीज और पार्टिसिपेंट्स शेयर कीजिए, क्या रेमेडी लगती है आपको? क्या सबसे स्ट्राइकिंग क्या है इस केस में? अभी क्या लगा ये केस में, जो कोर रूब्रिक है इस अभी के प्रेजेंटेशन में?
इन्वायरमेंट से उसको बहुत सेंसिटिव है, तो डिलीजन इंजरी बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग। ओके सर। भी है जेस्चर ग्रोपिंग एज इफ इन डार्क है, हायर साउंड ज्यादा। ओके सर। ओके। बताया गया है कि देखिए एंटीबायोटिक ज्यादा लोगे तो लीवर किडनी पे असर पड़ता है, तब देखो ऐसा है क्या, तो फिर पॉइजन ऑफ द मेडिसिन भी आएगा। अच्छा सर। जी जी। पर सर अभी ये पेशेंट ने जब मुझे अप्रोच किया तो ये खुद ने नहीं अप्रोच किया। आपने वो पॉइंट नोटिस किए सर कि जब मम्मी ने उसको बोला ना कि तू क्यों नहीं मैम से ट्रीटमेंट ले रही है, तभी फिर पेशेंट ने मुझे अप्रोच किया। तो यहाँ पे आपको कुछ लगता है सर? Delusion head belongs to another. उसके मम्मी ने उसको पॉइंट आउट किया, इसलिए वो आया, नहीं तो वो दूसरों के पास दिखा रहा था। यही लगा मैम। और क्या लगा सर? यस सर। और क्या लगा और सर अभी आपको? भी वो एम्बिशन, अभी भी वो एग्जाम देने के लिए, मतलब वो एम्बिशन उसका अभी भी जारी है कि वो बराबर है। मतलब एग्जाम देने यस। के लिए वो अभी प्रिपेयर ले रहा है, प्रिपरेशन, ये मतलब आया है समझ में। ओके सर। और इस केस में क्या लगा आपको? मैं डिस्क्लोज कर दूं मेडिसिन पार्टिसिपेंट्स? कोई और शेयर करना चाहेगा? जी मैम कर लीजिए, तो बाद में जो भी डाउट क्वेरी वगैरह होंगे तो हम लेते हैं। ओके सर। ओके। Analysis of the case. The first thing that came in my mind is that this patient had already taken treatment from me and she got cured. Still, it didn't occur to her that she should consult me. When she told her mother that she is suffering again and again from respiratory infections, her mother told her to consult me. ये बहुत striking था. Also, when I asked her what will happen if you take antibiotics for long, she said doctors बोल रहे हैं that it will cause harmful effects on liver, kidney in future. So patient is not thinking on her own. She is not using her head and following what others are saying. This is delusion, head belongs to another. यहाँ पे भी anxiety dark in है. She is not able to understand why she is suffering, whether it is because of new environment or her body is not adapting. उसने बहुत अच्छे से clearly बताया end में. She says क्या है समझ नहीं आ रहा. So your patient is in dark and getting anxious due to it. ये यहाँ पे भी dark में है और ये यहाँ पे भी applicable है. When she said she is feeling sleepy, whether it is because due to tablet or anything else, she is not able to figure it out. और ये जो मुझे एम्बेरसमेंट जो मैम ने बताया उसको मैंने अफेक्टेशन लिया है, जो हायोस का रूब्रिक जिन्होंने शेयर किया है अफेक्टेशन, उन्होंने अफेक्टेशन बहुत अच्छे से पकड़ा है कि 2 बार जब भी मैंने फियर का पूछा है तो शी कंप्लीटली डिनाइड फियर और वो हंस रही है. शी डिनाइड दैट शी हैज एनी टेंशन ऑन फियर बट आई कुड सेंस इट. शी वाज नॉट शोइंग हर फियर. दिस इज अफेक्टेशन. She also mentioned that her friend's brother was suffering from same complaints and he was treated by homeopathy. So she took that impression that she will also be better. This is impressionable. Or at one point she blamed herself that because she took milk, curd, her complaints have increased. This is reproaching oneself.
वापस नेट्रोम्यूर दिया मैंने 200 फॉर 3 नाइट्स विद एसएल, और पेशेंट ने एक डोज खुद ही ले लिया। वो मैं आपको एक ऑडियो शेयर करती हूँ फॉलोअप, वो आप प्लीज सुनिएगा, और बाद में कोई रिपीटेशन की जरूरत नहीं लगी। ये फॉलोअप है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 20 जैन से मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी पेशेंट ने, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है NM 204 pills at night before bedtime for 3 nights। फिर उन्होंने मुझे फर्स्ट फॉलोअप दिया था 3rd Feb को, एंड शी वाज कंप्लीटली बेटर। मैं वो ऑडियो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। 11 Feb को उनका एक मैसेज है कि मैम, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड विथ योर ट्रीटमेंट एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल विथ यू मैम टू एक्सप्रेस माई हेल्थ इश्यूज। नाउ आई हैव मोर ट्रस्ट ऑन योर ट्रीटमेंट एंड दिस होम्योपैथी मेडिसिन। Thank you so much for giving me opportunity to present the case. Thank you. थैंक यू मैम। जी सर, दोनों केसेस में नेट्रोम्यूर दिया था मैंने, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। आई होप पार्टिसिपेंट्स की आपको कुछ इसमें से लर्निंग मिला है। प्लीज शेयर कीजिए। बहुत कुछ। बहुत अच्छा रहा। प्लीज अगर कुछ क्वेरीज है जो मुझे लगता है कि मैं सॉल्व कर पाऊंगी, कुछ है क्वेरीज तो प्लीज आप पूछिए। इसमें हेलो एंजाइटी डार्किंग था। हाँ बोलिए बोलिए मैम। मैम, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि डेल्यूशन इंजुरी बीइंग इंज्यूर्ड लेना चाहिए कि एंजाइटी डार्क, मतलब वो बोल रही थी ना ये खाने से मेरी तकलीफ बढ़ जाती है। जी, बट फिर वही पॉइंट आता है ना मैम कि उसका फोकस कहाँ पे था। उसने यहाँ पे भी वो डार्क में ही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों फिर उसको हो रहा है, कि एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है क्या उसको, या उसको वो बॉडी उसका अडेप्ट नहीं कर पाया। फिर वापस उसका फोकस उसी पे था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर सेकंड बार भी उसने वैसे ही नरेट किया, वही उसने पॉइंट बताया कि ये मैं बहुत स्लिपी फील कर रही हूँ, पर किस लिए, किसकी वजह से पता नहीं। आप समझ रहे हो, वो फोकस जो था ना वो उसी वर्ड्स पे था बार बार कि वो डार्क में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, उसकी सिचुएशन ही डार्क में है। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जी और बताइए। और मैम का फर्स्ट बीसी है, उन्होंने अपना फर्स्ट केस प्रेजेंट किया है, तो उसके बारे में भी प्लीज सभी लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताइए कि जो हमारे दूसरे IHF फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी मोटिवेशन आए, उनको भी अंदर से ऐसा लगे कि हाँ नहीं हमको भी केसेस अपने प्रेजेंट करने चाहिए। तो मैम ने जब ये केस मेरे साथ शेयर किया था तो मैंने पढ़ते ही सिंपली वाओ बोला था कि बहुत बढ़िया केस है। नेट्रोम्यूर की अच्छे से मतलब सभी एक तरह से जो उसके अलग अलग फैसेट हैं उनको कवर करता है। बहुत ब्यूटीफुल केस है नेट्रोम्यूर को समझने की, और ऑलमोस्ट सभी पार्टिसिपेंट्स ने क्रैक भी किया है। जी मैम, रिचा मैम बोलिए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना टाइम दिया और आपने मुझे गाइड किया कैसे केस प्रेजेंट करना है। और मैं एनकरेज करूंगी बाकी भी जो न्यू कमर्स है कि हेजिटेट ना करें। अभी मैं भी बहुत न्यू हूँ, सही मैं बताऊं तो मैंने अभी अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है 8 मार्च को 2024। तो ये जो मैंने केसेस लिए थे घर से ही लिए थे, पर अच्छा रिजल्ट आया। और बेस्ट पार्ट तो यही है ना कि हम जब शेयर करते हैं तो हम और सीखते हैं और लर्न करते हैं। तो मैं यही एनकरेज करूंगी सारे पार्टिसिपेंट्स को जो न्यू है कि और आगे आए, हेजिटेट ना करें, शेयर करें। जी मैम, तो बताइए प्लीज किसी का कोई नेट्रोम्यूर को लेके क्वेरी है, जैसे आपके माइंड में हायोसाइमस आया, लेकिसिस आया, या फियर बिट्रेड रूब्रिक आया, या इस तरह का है। ये बिल्कुल नेचुरल है। नेट्रोम्यूर वैसे तो मिनरल है, लेकिन बहुत बार वो ऐसी शेड हमको देता है कि जैसे वो एनिमल रेमेडी जैसा है। फियर बिट्रेड का भी आपको बहुत शेड उसमें दिखाई देगा, तो ये बिल्कुल नेचुरल है।
तो ये आप हमेशा अपने माइंड में रखिए, क्योंकि फियर बिट्रेड में भी नेट्राम्यूर पड़ा है। गुड इवनिंग मैम। यस मैम मैम, मेरा एक गुड क्वेश्चन है। इवनिंग। मैम मुझे वो समझ जी में मैम। नहीं आया, जो एंटीबायोटिक्स का था उसमें डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अदर्स क्यों लिया गया है, जब डॉक्टर ने उन्हें कहा कि एंटीबायोटिक से आप ही का लिवर खराब हो जाएगा। तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों लिया गया है। मतलब वो तो अपनी तरफ से ट्राई कर रही थी ना कि मैं ठीक हो जाऊं। नहीं मतलब उसको वो वैसी फीलिंग आया ना कि डॉक्टर्स अभी बोल रहे हैं कि वो बार बार एंटीबायोटिक्स ले ही रही है ना, बराबर। पर अभी डॉक्टर्स ने बोला है कि आप बार बार अभी थोड़ा लोगे तो अभी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में वो आपको हार्म करने वाला है। तभी मैम उसने पर एक्शन लिया ना। फिर तभी उसने मुझे कॉल, मतलब तभी भी मुझे उसने कॉल नहीं किया तुरंत, मम्मी ने जब बोला तब कॉल किया, मैम इसमें इसीलिए मैम। मतलब ये नहीं ले सकते क्या, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, क्योंकि वो तो जो डॉक्टर्स कह रहे थे यूजुअली पेशेंट फॉलो करता ही है ना, वो कि एंटीबायोटिक जो दिए देते हैं वो लेते ही जाते हैं। तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आया था ये रूब्रिक। ओके मैम। मैम मैंने वो वैसे ही कंसिडर किया, क्योंकि वो खुद का सोच नहीं रही थी ना। फिर मतलब जब डॉक्टर्स ने बोला ना, तभी उसको फिर वो स्ट्राइक हुआ। वो अपना अपना नहीं ज्यादा सोच रही थी, वो सोच सकती थी, उसने एक्शन नहीं लिया। ओके मैम, ओके जी ठीक है मैम, इसने ठीक है मैम। इसने मैम से पहले ट्रीटमेंट लिया था ना, तो ये मैम के पास भी डायरेक्टली हाँ जा सकती थी, पर वो दूसरों के पास। हाँ मैम वो मुझे समझ में आ गया, बट बस ये नहीं समझ में आया था कि क्यों उसने ये वाला लिया था। ठीक है मैम, थैंक यू, क्लियर हो गया मुझे, जी थैंक यू। जी। ये मैं और एक पॉइंट मुझे केस में मिला, इसलिए मैंने उस पर भी फोकस किया। मेन तो मुझे वही फोकस करना था कि जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले चुकी है मुझसे और इतना अच्छा रिलीफ भी मिला है, तो वापस करना चाहिए था तो मैम उसमें क्या ऐसा। मैथमेटिक्स इनेबिलिटी ले सकते हैं क्या, अगर ऐसा हो? क्योंकि कई बार कई मेंटर्स के केस में ये होता है कि पेशेंट अप्रोच ही नहीं करता, एलोपैथिक के पास चला जाता है जब उसे सीवियर प्रॉब्लम होती है। तो ये ले सकते हैं क्या ये वाला रूब्रिक? पर मैम मुझे लगा कि इसमें ऐसे कैलकुलेट करने जैसी कुछ बात नहीं लगी ना मैम, इसको कैलकुलेट क्या करना था, तो ओके मैंने नहीं सोचा मैम वैसे। ओके ओके मैम। जी मैम, एक मिनट है मैम मेरा, आप बोलिए मैम प्लीज, बार बार टेबल खींच रहा है। मैम हो गई मेरी जी मैम प्लीज। क्वेरी सॉल्व होगी। ओके मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस मैम यस। हेलो मैम, गुड इवनिंग हाँ यस सर, गुड इवनिंग सर। मैम। हम उसको फॉरगेटफुल अबाउट वेल नोन स्टेट्स ये ले सकते हैं क्या, जबकि ये आपसे पहले लेकर ठीक हो चुकी थी, पर इस बार वो उसको याद ही नहीं आ रही है। आपसे लेने के लिए वो अपना नहीं नहीं सर, दिमाग प्लीज आप पहले फॉरगेटफुल को वो समझिए आ भी प्लीज। नहीं रहा है, इसलिए। नहीं नहीं सर, आप प्लीज फॉरगेटफुल को समझिए हाँ जी। पहले। वहां पर क्या होता है कि उसकी टेंडेंसी ही पर्सन की ऐसी होती है कि वो बार बार चीजों को भूलता है। ठीक है ना सर, उसकी टेंडेंसी ही ऐसी अच्छा। होती है कि वो बार बार चीजों को भूलता है, और वो आपको स्पेसिफिक एक चीज में दिखाई नहीं देगा, उसकी ढेर सारी चीजों में देगा कि कुछ करते करते उसने कोई चीज कहीं पे रख दी, रख के भूल गया, है ना। तो वो थोड़ा अलग है, बिल्कुल फॉरगेटफुल बिल्कुल अलग है। वहां पर हमारी मेंटल कैपेसिटी जो है, जो पहले हम फॉरगेटफुल नहीं थे, चीजों को नहीं भूलते थे, सब याद रहता था, अभी उसको हमने भूलना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर क्या है कि एक पेशेंट जिसको उसकी इतनी सीवियर पैथोलॉजी थी, एक तरह से अलग अलग डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास वो जा रही है, और वो उसको प्रॉपरली बता नहीं पा रहे हैं कि आपको पैथोलॉजी है क्या, है ना। उसने बोला कि अहमदाबाद में मैं बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जा चुकी, तो वो डॉक्टर्स अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं और उसकी पैथोलॉजी के बारे में उसको बता नहीं पा रहे। तो वहां पर मैम ने उसको उस पैथोलॉजी से निकाला, ठीक है, और अभी उसको कोल्ड एंड कफ का इशू है
कंपैरिजन आप देखिए कि कितना मतलब वो पैथोलॉजी कहाँ थी और ये कहाँ पे है। ठीक है, इसमें भी उनको परेशानी है, तो उनके माइंड में खुद से क्लिक नहीं हो रहा है, तो वो अपनी एक फ्रेंड के ब्रदर का केस देखते हैं और फिर उनकी मदर उनको बोलती है, तो उसके बाद उसको माइंड में आता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर उनकी अपना जैसे वो अभी जॉब पर भी लग चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं वो, उसके बावजूद भी वो खुद से इस मामले में एक तरह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जैसे ही मदर ने बोला तो फिर उनको लगा कि हाँ मेरे को ये करना चाहिए। तो डिलूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर, मतलब उसका ये सारा कैपेसिटी जो रहता है सोचने समझने का, जो एक हेड हमारा काम करता है, एक डिसीजन मेकिंग हमारे अंदर एक कैपेसिटी रहता है, तो ये जो रेमेडीज हैं इनकी डिसीजन दूसरा लेता है। ओके सर, ये फॉरगेटफुल से ज्यादा कंफ्यूजन में आएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। प्रवीण सर, जी हेलो सर। हाँ बोलिए मैम। हाँ जी, नहीं यही क्वेश्चन से रिलेटेड सर, ये भी है ना कि इसमें वेल नोन स्ट्रीट है, तो होम्योपैथी तो सिर्फ एक ही बार लिया है तो वो वैसे भी नहीं आएगा ना, क्योंकि वेल नोन स्ट्रीट तो बहुत ही जानी पहचानी जगह होती है। उसने तो 3 साल पहले एक बार लिया था, आराम मिला, फिर उसको ध्यान ही नहीं रहा, तो इस वजह से भी नहीं ले सकते ना ये वाला रूब्रिक, कि फॉरगेटफुलनेस भी नहीं है और वो उतना वेल नोन भी नहीं है ना होम्योपैथी उसके लिए। ये दोनों जी, फैक्टर्स आएंगे ना सर? बिल्कुल मैम, मैंने बाद का सुना नहीं, अगर उन्होंने ये बोला था तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया है, मेरे को सिर्फ फॉरगेटफुल सुनाई दिया था। हाँ, नहीं, ठीक है। जी हाँ, थैंक यू सर। वेल नोन स्ट्रीट मतलब जो हम बहुत अच्छे से जानते समझते थे, अभी वहां पर हम खुद ही भूल जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बताया आपने वो। हाँ, थैंक यू सर। बिल्कुल यही यस मैम, नाइस इनपुट मैम, थैंक यू। जी, और बताइए, किसी का कोई क्वेरी है तो हम फिर वाइंड अप करते हैं, ज्यादा लंबा बीसी भी फिर थोड़ा बोरिंग हो जाता है देखने वालों के लिए। थैंक यू मैम सो मच, कांग्रेचुलेशन फॉर योर फर्स्ट केस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया सभी ने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसकी वजह से एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है और एक एनर्जी लेवल्स जो है और बढ़ जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू मैम, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड फॉर डिस्कशन। ओके मैम, थैंक यू। यस, थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। लास्ट में मैं जो दो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन्स है उनको थैंक यू कहना चाहूंगी। ये मेरा बेबी और मेरी डॉटर जेनिशा। जेनो कम बेटा। जी जी यस, दोनों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। जी 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 जी। तो हमारी तरफ से इनको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग, इनका फ्यूचर, इनकी लाइफ प्रॉस्परस हो, हेल्दी हो और खूब ये अपने लाइफ में तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, खूब आपका नाम रोशन करें। हमारी IHF फैमिली की ओर से इनको ढेर सारा प्यार। हेलो हेलो बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू मैम। तो आज की इस शानदार वीसी को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जैसा कि मैम ने कहा, तो आप सभी ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया है, उसके लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार। और हमारे दूसरे IHF फैमिली मेंबर्स जो हैं, उनको एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग भी आगे आइए और अपने केसेस को प्रेजेंट कीजिए। और जैसे मैम ने बोला कि कोई भी हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर्स रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं, वो अपने केस को प्रेजेंट करते हैं ना, तो उसके लिए वो बहुत पढ़ते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेंबर की तरफ से कुछ भी आ सकता है, तो अपनी तरफ से वो 100% से भी ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट डालते हैं कि वो जस्टिफाई कर सकें। ठीक है, और बस इसके उसमें क्या होता है कि एक अच्छा पार्टिसिपेशन मिल जाए और एक थोड़ा सा मतलब उनको एनकरेज करने के लिए एक थोड़े से ऐसे कमेंट आ जाएं कि आपका बहुत बढ़िया सेशन था,
और अगर किसी को क्रिटिसाइज भी करना है कंस्ट्रक्टिव वे में, हेल्दी वे में, तो उसका भी वेलकम है। तो प्लीज आप दिल में मत रखिए, जो भी आपके दिल में है प्लीज शेयर कीजिए। तो आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर लीशा ठाकरे मैम का बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने के लिए, और अपने इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद और नटखट बच्चों के बावजूद आपने इतना अच्छे से सब मैनेज किया और सब बहुत ही ब्यूटीफुली इस केस को एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा केस। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।